हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो वन ऑफ द यू नो बहुत ही लोकप्रिय एक टीवी एंकर हैं पालकी शर्मा जी, पत्रकार हैं और मुझे तो बेहद ज़्यादा पसंद है क्योंकि जितनी भी ये रिसर्च करती हैं, जितनी बातें ये कहती हैं, वर्ल्ड बहुत ही यानी काम की हैं। उस पर बाकी जितने भी मीडिया है ना, उसका मुझे लगता है कि 1% 1 या 3% भी रिसर्च नहीं करते हों जितनी अच्छी से तैयारी से और जितने अच्छे से डिलीवर करके ये चीज़ों को कहते हैं। तो वाकई मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं इनकी हर एक वीडियो को, इनका जो शो आता है वेंटेज, उसको देखता रहता हूँ। तो इन्होंने पालकी शर्मा जी की वीडियो है कि अफ्रीका वांट्स मेड इन इंडिया वेपन्स। और इससे पहले हमने एक वीडियो पर रिएक्ट भी किया था कि भारत की जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं इक्विपमेंट की, वो बढ़ रही है, दुगना हो चुके हैं, 15,000 कुछ समथिंग करोड़ वो बढ़ी हैं पिछले बार के मुकाबले जो दुगनी थी। तो देखते हैं कि वीडियो में पालकी जी क्या कहते हैं और वीडियो के एंड में थोड़ा बताएंगे। Meanwhile, India is making a major push into Africa. India is wooing Africa, and this time with weapons. This story is about India's foray into the African arms bazaar. Last week, India invited the army chiefs of more than 30 African nations, 30 nations. The idea was to pitch made in India defense equipment. African military leaders got a chance to inspect Indian helicopters, drones, and artillery. And India is hoping that they'll come back as buyers. Why Africa, though? Why is India projecting itself as a defense supplier to Africa? Because there's a gap, there's a market. Africa cannot afford expensive military supplies. It wants cheap arms. And that's how India is positioning itself, a supplier that gives value for money. It's already found takers. Some African countries have started buying arms from India, like Egypt, Ethiopia, Mozambique, Mauritius, and the Seychelles. And what are they buying? We don't have the specifics, but reports say a little less than 20% of India's arms exports go to Africa. Some deliveries have been made this year, like these military trucks. They were built by India for the Royal Moroccan Army. And how many trucks did Morocco buy? Nearly 100. There's another reason why Africa is interested in Indian wares. It's because of India's collaborative approach. India is committed to not just supplying arms to Africa, it is also helping the region build its own capacities. Last week, India's Defense Minister Rajnath Singh spoke about this. He addressed the African defense chiefs and he promised support to Africa's defense industry. Let me quote from what he said. The Indian defense industry can work with you to fulfill your defense requirements with the aim to empower our African friends to indigenously meet their defense requirements. We are also committed to sharing our expertise and knowledge in defense manufacturing, research, and development. What more can India offer? In recent years, India has overcome its hesitation on defense exports. In fact, it has been actively pushing made in India weapons like advanced towed artillery guns, the BrahMos missile, the Akash missile system, armored vehicles, and light combat helicopters, just to name a few. Recently, India has been courting Southeast Asia too. Major deals have been signed. Countries like the Philippines have bought the BrahMos missile. Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, and Myanmar have also expressed interest. Last year, reports said South Africa was also keen on buying the BrahMos. In 2022, South Africa organized the Africa Aerospace and Defense Expo. It happened in Cape Town. The makers of the BrahMos were present there. They'd set up a pavilion. So Indian defense equipment is generating a lot of interest in Africa. And this serves two purposes: defense sales for India and deeper ties with Africa, including defense ties. In fact, military drills are being stepped up. In the month of March, India hosted a major joint exercise, the Africa-India Field Training Exercise, or AFINDEX. It was a 10-day-long exercise. Militaries of 24 African countries participated. And what did they focus on? Humanitarian mine assistance and United Nations peacekeeping operations. So India's influence in Africa is growing, although Russia still remains the dominant force in the region. Russia is the largest supplier of weapons to Africa. In sub-Saharan Africa, Russia has a 26% market share. But the war in Ukraine has
distracted Russian defense contractors. They're prioritizing the Russian military, and for obvious reasons. Even deliveries to India from Russia are now running late. And this might force African militaries to look for alternatives. India is clearly at a vantage point, and this is yet another opportunity for making. तो दोस्तों ये रही वीडियो, और क्या बहुत ही पॉजिटिव खबर है इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर के लिए कि जिस तरह से भारत का डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, सपना है जो हमारे पीएम का भी और इंडिया का भी एक सपना है मेक इन इंडिया। सो उसके ज़रिए जितने भी भारत डिफेंस इक्विपमेंट जो जारी कर रहा है वो अगर एक्सपोर्ट होंगी, बाहर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है भारत के इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। भारत की नई टेक्नोलॉजी को लेने में, ख़रीद करने में, या हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो सकती है शायद, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी तो डिफेंस में भी हमारे जो पास कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी उसको ख़रीदने की। तो ये थी खबर, और क्या कहूँ, पालकी जी जब भी कुछ कहती हैं तो पूरा ही बता देती हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैंने थोड़ा सा हिंदी में इनको बता दिया है कि कैसे भारत जो है एक्सपोर्ट कर रहा है और क्यों अफ्रीका के देश भारत पर ज़्यादा रिलायबल हो रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो मार्केट शेयर है वहाँ बहुत ज़्यादा है, 25% है जो कह रहे हैं। बात यह है कि रशिया खुद एक युद्ध में अभी उलझा हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा है, डिलीवरीज़ डिले हो रही हैं। जैसे भारत के लिए भी जो इक्विपमेंट हैं डिफेंस के उसमें डिलीवरीज़ में डिले चल रही है, तो छोटे छोटे देशों के लिए तो वैसे भी डिलेज हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं। चलो खैर, हम इस वीडियो के जो नीचे कमेंट्स हैं ना थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं। तो रोनाल्डियो 7 इनका जो कमेंट है वो कहते हैं कि पालकी इज़ अ ग्रेट वुमेन एंड इंडिया इज़ अ वेरी वाइज, सेंडिंग लव माई इंडियन ब्रदर्स फ्रॉम कैमरून। सो कैमरून एक कंट्री है, और वो लिख रहे हैं पालकी जी के लिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ग्रेट वुमेन। या पालकी जी की जो प्रेजेंस है ना यार, इंडिया के अलावा बाहर के देशों में बहुत अच्छी है, और बहुत से लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भी कोई रिपोर्टर ऐसा है या हमारा भी कोई न्यूज़ एंकर ऐसा है जिसे बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। और इंडिया के लिए लिखा है कि इंडिया इज़ वेरी वाइज, बहुत समझदार है। यस, समझदार है, समझदारी की तरफ फिर चलना भी पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंदर ही कई लोग ना समझदार घूम रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। वेजली राम प्रसाद ये लिख रहे हैं कि दिस इज़ ए ग्रेट अप्रोच, दिस इज़ हाउ हवाई ग्रू, दे टारगेटेड poorer markets first. I hope that the Indian industry continue with this approach. The mantra should be cheap, great, quality, reliable and durable. This mantra should be embodied as well. Yes, ऐसा मंत्र होना चाहिए कि जो सस्ता हो, क्वालिटी में अच्छा हो, रिलायबल हो। यार सबसे पहली बात, इंडियाज़ की जो खासियत है वो यही है कि हमारी जो चाहत होती ना कि हमें सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, और हमें वो असरदार भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम पैसों की वैल्यू, पैसों की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसों की बहा दिया और उसका कुछ नतीजा ना हो। हर एक रुपए की कीमत समझते हैं। इसीलिए इंडिया जो है वो समझता है कि किस तरह से उसको कोई भी जो चीज़ बना रहा है उसको कैसे उसको बहुत अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, ताकि सस्ती चीज़ों पर लोगों का ध्यान जाए। ये हमारा इसरो भी कर रहा है, और ऐसे ही हमारी जो इकोनॉमी है ना पूरा ग्लोबल वर्ल्ड को कैप्चर करेगी। ये आप देख लीजिएगा। अगला कमेंट ले लीजिए तो फिर वाइंड अप करते हैं। तो ये लिख रहे हैं WCS पैसन, सॉरी ये भारत के हैं थोड़ा सा। तो यह है ज़कारिया अब्दी मोहम्मद। तो ये लिखते हैं कि वेल
दैट्स ए गुड चॉइस इंस्टेड ऑफ द USA donating their World War II weapons to Africa. Indian tech is also thriving in some African countries along with the Chinese. तो बेसिकली USA को थोड़ा टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि USA जो अपने वर्ल्ड वॉर 2 की जो वेपन्स हैं वो अफ्रीका के देशों में डंप कर रहा है, डंप यानी कबाड़ी बेच रहा है। तो इंडिया टेक के आने से जो जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत अच्छा एक ऑप्शंस मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कुछ सुझाव देना है, कुछ कमेंट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कुछ भी कहना हो, कुछ ना कहना हो तो दिल खोल कर कह दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।